یاری بلا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی گل ایک نقطے وچ مکدی ہے۔ انسانیت کا درس دیتے اولیاء اکرام کا برصغیر میں اسلام کی تبلیغ میں ایک اہم کردار رہا ہے۔ بزرگان دین کے اس مشن کو دور حاضر تک ان کے مریدوں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ عقیدت کا یہ سلسلہ کتنے برسوں پر محیط ہے اس کا اندازہ لگانا تو مشکل ہے، مگر ان اولیاء اکرام کی طرح ان کے مریدوں کے مزارات پر بھی عقیدت مندوں کا رش دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ آج کی تفتیش میں جائزہ لیا جائے گا ان مزارات کا جو کچھ عرصہ قبل ہی وجود میں آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے مزارات کا بھی تذکرہ شامل ہے جن کے شجرہ نسب کے بارے میں تو سجادہ نشین اور مجاوروں کو سر سے علم ہی نہیں۔ تفتیش میں اس بات کی بھی کھوج لگائی جائے گی کہ کیا بیٹھگیں درگاہیں بن سکتی ہیں یا نہیں۔ آخر یہ مزارات چشم زدن میں کیسے وجود میں آئے؟ کیا ان صاحب مزار ہستیوں کی تعلیمات اور ان کے شجرے کے بارے میں کہیں کوئی کچھ جانتا ہے؟ تفتیش شروع کی جاتی ہے۔ رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبھا سجدے کر کر ہارے، رب تے تیرے اندر وزدا وچ قرآن اشارے، بھلے شاہ رب اونو ملسی جھیڑا اپنے نفس نو مارے۔ رب کی تلاش کے سفر کا ایک مسافر ہمیں راولپنڈی کے علاقے روات میں ملا۔ کہتے ہیں غلام حسین نے 40 سال کا چلہ کاٹا۔ کیا کسی شخص کے لیے 40 سال تک بغیر کچھ کھائے زندہ رہنا ممکن ہے؟ اللہ 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 راولپنڈی کی تحصیل روات کے نواحی علاقے بانٹ شریف میں سائیں غلام حسین کی درگاہ کو خاصی شہرت حاصل ہے۔ تفتیش کی ٹیم ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بانٹ شریف پہنچی۔ یہاں ہماری ملاقات سائیں غلام حسین کے اہل خانہ سے ہوئی۔ اس ملاقات کے دوران انہوں نے ہمیں سائیں جی کے بارے میں حیران کن باتیں بتائیں، جن میں سر فہرست یہ تھی کہ سائیں جی 40 سال 8 ماہ تک چلہ گاہ میں عبادت کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے کچھ کھایا ہی نہیں، جبکہ ان کے اہل خانہ کو عبادت گاہ میں صرف پانی رکھنے کی اجازت تھی۔ یہ 1971 کی جب جنگ ہوئی تھی تو اس کے فوراً بعد انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، اور وہ باہر ہی ہمارے پاس ہی رہے، تو وہ تقریباً 5-6 مہینے وہ بغیر کھائے پیے رہے ہیں۔ تو جب اندر گئے ہیں تو ہم ان کو وضو کے لیے پانی دیتے تھے۔ اب وہ خدا کی ذات بہتر جانتی ہے کہ وہ پانی پینے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ کوئی ایسا شخص جو کہ 30-40 دن کے لیے غائب ہو گیا، اگر وہ اس 30-40 دن میں میرے ساتھ رہے اور دن رات رہتے ہوئے سنت رسول پہ قائم رہے، تو میں اس سے اتنا متاثر نہیں ہوں گا جتنا میں اس بات سے معاذ اللہ متاثر ہو جاؤں گا کہ وہ کہے کہ ان 40 دنوں میں میں نے فلاں فلاں شخص سے حاضری لی اور وہ میرے پاس آیا۔ گوشہ نشینی بھی کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر نہ بھی کی جائے اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو پھر بھی آپ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ سائیں غلام حسین سخی معظم سے بیعت یافتہ تھے۔ سائیں جی پاک آرمی میں لانس نائک تھے۔ سن 71 کی جنگ کے بعد طبیعت کی خرابی کے باعث میڈیکل بورڈ لے کر گھر آئے۔ اس علالت کے دوران آپ نے عبادت اور ریاضت کا سلسلہ شروع کیا۔ سائیں غلام حسین کے بھائی ملک نظر حسین کہتے ہیں کہ گھر پہنچ کر سائیں جی نے اپنی والدہ سے علیحدگی میں عبادت کا مطالبہ کیا۔ یوں گھر کے افراد کی مشاورت سے ایک پرانے کچن میں گوشہ نشین ہو گئے۔ چھانگا منگا جنگل کے لیے انہوں نے اجازت مانگی، میرا چلہ وہاں ہے، لیکن والدہ رو پڑے۔ میں اس خوف سے آپ کو اگر میں اجازت دے دیتی ہوں تو ہو سکتا ہے ساری زندگی مجھے پھر آپ سے ملاقات نہ ہو، یہ میں برداشت نہیں کر سکتی، لہٰذا آپ علیحدہ ہو جائیں، کمرے میں علیحدہ ہو جائیں تاکہ آپ کی عبادت میں خلل نہ آئے۔ چلہ کاٹنا جو ہے اس کا شرع سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی محنت کا ذکر کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو آج تک کوئی ایسی امت تباہ نہیں کی جس نے عبادت و تسبیح کم کی ہو۔ اللہ نے تو ان امتوں کو تباہ کیا جنہوں نے جھوٹ بولا، جنہوں نے بد اخلاقی کی، جنہوں نے کم تولا، جنہوں نے غیبت کی۔ 5 اگست 2010 کو سائیں غلام حسین اپنی چلہ گاہ سے باہر آئے اور صرف 4 روز گزرنے کے بعد ہی
जहान फानी से पर्दा नशीं हो गए। उनके भाई का कहना है कि साईं जी जब अपनी चिल्लागाह से बाहर तशरीफ लाए तो उनकी मौजूदा और गुज़िश्ता जिस्मानी हालत में कोई फर्क नहीं था। वो जिस हाल में गोशा नशीं हुए उसी में वापस आए। बस उस वक्त अंदर जो सारे बंदे जाग रहे थे और उस दिन चूँकि सबको पता था कि आज साईं जी अलहदा होंगे, हमारे मामू असलम हैं उनकी फैमिली भी यहाँ मौजूद थी, वो भी और हम सारे घर वाले पहले तो सिसकियाँ ले लेके रो रहे थे और उसके बाद हमारी दाढ़ें निकल गई। साईं जी जब चिल्लागाह से बाहर आए तो उनसे अकीदत रखने वाले जोक दर जोक उनकी ज़ियारत के लिए तशरीफ लाने लगे। साईं जी की दरगाह पर न सिर्फ अकीदतमंदों की हाजिरी बल्कि दौरान हयात ही आपकी हिदायत पर शुरू होने वाला सिलसिला महफिल मोहम्मदी भी आज तक जारी है। इस ज़िक्र की महफ़िल में बैठ के ना तो जो रूह में ताज़गी आती है और अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, मैं समझता हूँ कि बाकियों से बहुत मुख्तलिफ है। वो लोग जो वाकया ही दूर से आते हैं, सिर्फ उनकी जो उनसियत है उसी से ही वो हासिल करते हैं। महफिल में इतनी बेहतरीन गुफ्तगू करते थे कि जी चाहता था कि सारा दिन बैठे। हम उस शख्स को अल्लाह का वली मानते हैं, और मैं ज़ाती तौर पे कह रहा हूँ जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला हो, और अल्लाह से मोहब्बत करना सिर्फ उसी के लिए मुमकिन हो सकता है जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हो। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है कि इंसान सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपनी अकल से नहीं बल्कि ज़ुबान रसूल को सुन के पढ़ के उस पर यकीन करता हो। इसके अलावा गोशा नशीनी के दौरान आला सूद के जरिए मरीदों से राब्ते में रहे। साईं जी के उर्स की तकरीबात हर साल 23 से 28 शबान के दरमियान हुआ करती हैं, जिसमें डाली, धमाल और दुआया तकरीबात का इनकाद होता है। जब भी हमने इनके पास आके रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए दुआ करें तो इन्होंने हमारे लिए दुआएं की और दुआओं ने असर भी दिखाया। यानी कि आपको ये बिल्कुल नहीं आप कह सकते थे उनको मिलने के बाद कि आप एक किसी ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जो गुज़श्ता 40 साल से दुनिया से कटा हुआ है। हमारे माशरे में दरगाहों पर हाजिरी तो बड़े ज़ोर शोर से दी जाती है, लेकिन अफसोस की बात यह कि अकीदतमंदों के अलावा सज्जादा नशीन और खिदमतगार भी इन बुजुर्गों के बारे में लाइल्म होते हैं। औलिया इकराम के हवाले से भी बहुत सारी दरगाहें मशहूर हैं, मगर उनके मुतालिक भी किसी को नहीं मालूम। यही मुश्किल हमें बाबा बहार भुल्ला बादशाह की दरगाह में पेश आई। फकीरी की कैफियत एक ऐसा लाजवाल एहसास है कि ये इंसान को कायनात के उन पोशीदा हकाइक से रोशनास कराता है जिसका अंदाजा लगाना भी एक आम आदमी की सोच से बाहर है। बरी इमाम के सादतमंद की हैसियत से पहचाने जाने वाले बाबा बहार फलान बादशाह की दरगाह भी इस्लामाबाद के एक नवाही इलाके में मौजूद है। यहाँ के मकीनों में ये दरगाह शोहरत का एक मुकाम रखती है। बाबा जी के अकीदतमंदों में साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ भी शामिल हैं। कि एक्स जो वज़ीर आज़म साहब हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ के अकीदतमंदों में से हैं। उनके भाई तकरीबन महीने में एक मरतबा ज़रूर यहाँ पे हाज़िरी देते हैं। इसके अलावा जो हमेशा हमारी जुमरात का जो लंगर होता है इसमें भी मतलब उनकी तरफ से जो है बाकायदा वो यहाँ पे पकवा के न्याज बेचते हैं। इस दरगाह के बारे में भी कोई खास तारीख मौजूद नहीं। तफ्तीश की टीम ने दरगाह के गद्दी नशीनों से बाबा जी की तारीख के बारे में जानने की कोशिश की तो वो भी सीना बसीना मिलने वाली मालूमात पर ही इक्तफा करते नजर आए। तो हमारे अबाओ अजदाद से जो है ना हम लोग तो यहाँ पे इनके खिदमत गुजारों में से हैं और हम तो जब से मतलब हमारी पैदाइश है उससे अनवर्ड हम तो इनकी खिदमत में जब से होश संभाला है
बस इधर ही इनके साथ चल रहे हैं। यकीनन वो औलिया मौजूद हैं कायनात में, उनकी कब्रें मौजूद हैं जिनके तवस्सुल से इंसान जो है खुदावंद मुताल से अपनी दुआएं कबूल करवाता है, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त सोसाइटी जिस तरफ जा रही है और हमारा मुआशरा जिधर जा रहा है, वहाँ तो सिर्फ माल दुनिया का लालच है और उसके हवाले से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। हम अगर किसी भी मज़ार पे जाएं तो उससे पहले हमें ये तस्दीक ज़रूर करनी चाहिए कि आया ये परहेज़गार और मुत्तकी शख्स था, आया ये अल्लाह के वली थे, और ये हमारे इल्म में होना चाहिए, और फिर ही हमें वहाँ जाके दुआ करनी चाहिए और हमें उनसे फैज़ हासिल करना चाहिए। ये कियानी कबीले का आबाई इलाका माना जाता है और इस दरगाह की देखभाल भी कियानी ही करते हैं। इनके आबा अजदाद ने 27 साल कबल उर्स का जो सिलसिला शुरू किया था, वो हर साल अगस्त के पहले हफ्ते में बाकायदगी से मुनक्कद होता है। हमारा ये उर्स आम तौर पर 2 रोज़ा होता है। यहाँ से मुख्तलिफ लोग डालियों की शक्ल में, जुलूस की शक्ल में दरबार के ऊपर हाजिरी देते हैं, और मगरिब के वक्त इज्तिमाई दुआ होती है जिसमें तकरीबन 2,500 से 3,000 सिर्फ वो लोग उस वक्त इज्तिमाई दुआ में शामिल होते हैं। बाबा बहार फुलान बादशाह की दरगाह के गद्दी नशीन राजा असद महमूद कियानी बचपन से ही इस मज़ार की खिदमत कर रहे हैं। चूँकि ये दरगाह एक टीले पर वाक़या है और इसके इर्द गिर्द इलाका मकीनों का कब्रिस्तान भी है, अपने प्यारों की कब्र पर हाजिरी देने वाले मर्द व ख़वातीन बाबा जी की ज़ियारत भी पाबंदी से करते हैं। हम इस वसीले से आते हैं कि अल्लाह ताला के प्यारे लोग हैं और हमारी जो मुरादें हैं वो इनके वसीले से हमारी पूरी होंगी। ज़ियारत पे आना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, दीन की तरफ आना चाहिए, क्योंकि ये लोगों ने कभी किसी को गलत रास्ता तो बताया नहीं है। तफ्तीश की टीम ने बाबा बहार फुलान बादशाह के हवाले से मुस्तनद मालूमात हासिल करने के लिए 105 साला बाबा अल्लाह दित्ता से राब्ता किया, जो कि इस इलाके की ज़ईफुल उम्र शख्सियत हैं। बाबा जी ने इस दरगाह पर अरसा दराज से हाजिरी देने वाले ज़ायरीन का जिक्र किया। इसके अलावा बाबा अल्लाह दित्ता से मिलने वाली मालूमात भी गद्दी नशीनों से मिलने वाली मालूमात से मुख्तलिफ ना थी। और पहले जो था उसमें जब बारिश नहीं थी होनी थी, दलिया पकाई थे पार घराना से पहुँचने से बारिश नहीं जगह बारिश होनी थी। आम इंसानों के लिए इल्म कसबी है, जितना वो पढ़ेंगे, जितना वो सीखेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे, उतना कुछ तो है जी। और उसके बाद उसको सोच और इदराक ज़रूर दिया है कि उससे वो आगे राह निकाल सके। लेकिन ऐसे नहीं है कि एक गद्दी नशीन उस गद्दी पे आके बैठ जाए और उस अपने पेश रो का सारा इल्म उसकी तरफ मुंतकिल हो जाए। तो गद्दी पे बैठने से इल्म मुंतकिल नहीं होता है, इल्म जो है वो पढ़ने लिखने से, सीखने से तब मुंतकिल होता है। बाबा बहार फुलान बादशाह की ये दरगाह इलाज के लिए भी बहुत मशहूर है। मन्नतों की तकमील के साथ साथ लोग अपने मर्ज की शफा के लिए इस दरगाह पर हाजिरी देते हैं। मेरे असल में थोड़ा प्रॉब्लम था कि ये मौके होते हैं छोटे छोटे ना, तो मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि वहाँ दरबार है और बाबा बहार में चाहता तो उधर जाए, दुआ करें, तो वो जो मौके होते हैं ना उस पर तेल लगाते हैं तो वो 1-2 दिन के अंदर अंदर ना वो ख़त्म हो जाते हैं। इस दरगाह के अहाते में एक माई जी भी मदफून है। माई जी के बारे में सज्जादा नशीन साहिबान के पास कोई खास मालूमात तो नहीं, लेकिन उन्हें फर्जी नाम बीबी पाक दामन से याद किया जाता है। हर जुमेरात को ख़वातीन बाबा फुलान बादशाह की दरगाह पर हाजिरी देने के बाद माई जी की कब्र पर भी हाजिर होती हैं। हमारे बुजुर्ग आते रहे हैं, वो अब चले गए दुनिया से, अब हम आ रहे हैं, अब हमारे बच्चे आके आते रहेंगे। इस मज़ार के अहाते में एक मस्जिद भी आबाद है। मस्जिद के पेश इमाम अब्दुल शकूर कादरी को भी बाबा जी की तारीख के बारे में इल्म नहीं था, अलबत्ता उन्होंने औलिया अल्लाह से अकीदत का इजहार जरूर किया। बाबा बहार फुलान बादशाह रहमतुल्लाह अलैहि कामिल हैं, और जितने अरसे से मैंने देखा है यहाँ पे कि जो भी ज़ाहिरीन आए हैं उन्होंने यहाँ पे जो भी मुरादें मांगी अल्लाह से, अल्लाह पाक ने इनकी तवस्सुल से पूरी फरमाई है। दीगर दरगाहों की तरह इस दरगाह पर भी हर जुमेरात को लंगर का इंतज़ाम होता है। गुमनाम मज़ारों की तफ्तीश हमें मलंग लाला जी की दरगाह तक ले आई। लाला जी के हवाले से एक मशहूर रिवायत ये भी है कि वो अपने मुरीदों पर सवारी किया करते थे। क्या ऐसा मुमकिन है? ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो खम है जुल्फ़े अयाद में। खीरी और मुरीदी की इस खोज में हमें एक ऐसे मलंग के बारे में भी लोगों ने बताया कि जो अपने मुरीदों पर सवारी किया करते थे। लाला जी के नाम से शोहरत पाने वाले ये मलंग इस्लामाबाद में बरी इमाम के इलाके कोह मस्तां में मदफून हैं।
کامرا شہر ضلع اٹک سے تعلق رکھنے والے لالا جی تجارت کے پیشے سے منسلک تھے، مگر سائیں غلام حسین کی طرح لالا جی کو بھی عشق حقیقی نے ایسا دیوانہ کیا کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو خیر آباد کہہ کر فقیری کا راستہ اختیار کیا۔ ابتدا میں وہ آپ پارا اسلام آباد کے ایک بس اسٹینڈ پر بیٹھا کرتے تھے۔ چند برس بعد وہ سید پور گاؤں چلے گئے اور پھر انتقال تک اسلام آباد کے بری امام میں واقع گاؤں کوہ مستاں میں مقیم رہے۔ یہ ہے کہ بشاور موڑ جب تھے تو ہم بری امام میں آتے تھے، لالا جی بھی آتے تھے اور ہم بھی ساتھ آتے تھے، بری امام تک آتے تھے۔ اس کے بعد بشاور موڑ سے پھر سید پور چلے گئے۔ ایک قابل آدمی علم رکھتا ہوا شعور کے ساتھ جب خدا کو تجربہ کرتا ہے تو وہ اپنے اس تجربے سے واپس آتا ہے اور دنیا میں اپنے اس تجربے کو بیان کرتا ہے۔ علی حجویر کہتے ہیں کہ یہ کتب الارشاد ہے، صرف کتب نہیں ہے، کتب الارشاد ہے، یعنی کہ تجربہ کیا اور واپس آ کے اپنے تجربے کو لوگوں تک پہنچایا۔ جو یہ نہیں کر سکتا اس کا نام ہم رکھتے ہیں مجذوب۔ وہ بات تو سچ کہتا ہے جو ہوتی ہے، لیکن اس سے دنیا کو کوئی فائدہ علمی طور پہ نہیں ہوتا۔ سواری کے حوالے سے مشہور لالا جی کے مرید ان کی نگاہ فیض حاصل کرنے کے لیے ان کی سواری بننے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ ان کے مرید خاص سائیں خالق داد تو تا حیات لالا جی کی سواری بنتے رہے۔ ایک قسم کی وہ کلندری پرواز تھی سرکار کی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے تو ان کا ایک نظام تھا، اس میں ایسے بیٹھتے تھے تو حضور اوپر آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ اس کے پردہ کرنے کے بعد مرید اس سے ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا پیر جو ہے وہ پانی پہ چلا کرتا تھا اور ہوا میں اڑا کرتا تھا۔ میرے خیال میں یہ ضعیف ایمان ہونے کی دلیلیں اور نشانیاں ہیں، کیونکہ ہم ایسے کلچر سے ہیں جہاں کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں، ہم سیگریگیٹ نہیں کر پا رہے۔ فقیر اور ملنگ دونوں ایک ہی چیز ہیں اگر وہ شریعت کے پابند ہوں، اور اگر وہ خالی ایک روپ اوڑے بیٹھے ہیں، ایک لبادہ پہنے بیٹھے ہیں کسی پرہیزگار متقی کا، تو پھر وہ ملنگ عام طور پہ جو شریعت کے خلاف ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس کی کوئی اسلام میں حیثیت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سجادہ نشین پرویز کلیامی پر بھی لالا جی سواری کیا کرتے تھے۔ رات سے سواری کرتے تھے، بشاور موڑ سے لے کر سوان اور بشاور موڑ سے کافی دفعہ سواری کر کے پیدل ہم آئے بری امام تک۔ فقیر عام طور پر دنیاوی حدود سے بالاتر ہوتے ہیں، اس لیے وہ مادی ضروریات کے بھی پابند نہیں ہوتے۔ لالا جی بھی ایسی ہی ایک دنیا رکھتے تھے، اسی وجہ سے شاید ان کو لباس سے سخت نفرت تھی، مگر ان کے مرید ان کے جسم پر پردہ داری کے لیے انہیں لباس پہناتے اور ہر وقت ان کی جسمانی صفائی کا بھی خاص خیال رکھتے۔ لباس بہت کم پسند کرتے تھے، پہناتے تھے۔ ملک صاحب نے شروع کیا، ان سے ملاقات ہوئی تو اتنے بڑے ناخن حضور کے اور زلفیں جڑی ہوئی، بڑی مشکل سے ناخن وغیرہ لعاب وغیرہ سیٹ کیے۔ غسل کا طریقہ بھی انہوں نے ہی شروع کیا، اس سے پہلے سرکار غسل ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتے تھے کسی بندے کو۔ خوراک کے استعمال میں بھی لالا جی کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، البتہ پانی، سبز چائے اور سگریٹ پر ہی اکتفا کرتے۔ کسی قسم کا انہوں نے کہا نہیں کہ میں نے یہ چیز کھانی ہے۔ ہو سکتا ہے مریدین بہت سامان لے کر آتے تھے نا کہ آگے رکھ دیتے تھے، بابا جی ہو سکتا ہے کہ روٹی پڑی ہے تو پانی میں نوالا لگا لیں، کیونکہ کھانے پینے کا مسئلہ ان کا بہت کم تھا۔ اگر ملنگ کا معنی سادگی ہے تو ہمارے سامنے ایسا کردار حضرت بہلول کا موجود ہے۔ انتہائی سادہ زندگی تھی، دنیا سے نفرت تھی، لیکن ایک ایک عمل میں وہ سبق سکھا دیا ہارون رشید کو کہ تاریخ آج تک اسے سبق حاصل کرتی ہے۔ یہ فقر جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، جو عام طور پر ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ایک تماشا ہے، بناوٹ ہے، دکھاوا ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لالا جی اپنے رب سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے اپنی حیاتی ہی میں ہر سال اکتوبر کے مہینے میں کلندری محفل کا انعقاد بھی کرواتے تھے۔ لالا جی کا حیاتی میں جشن کلندری ہوتا تھا، کیونکہ بابا جی نے خود کہا تھا کہ یہ میرا کراؤ، خوشی کراؤ۔ لالا جی کی حیاتی میں اس بیٹھک کو سی ڈی اے نے کئی مرتبہ مسمار کیا، لیکن اس مٹی نے انہیں کھینچے رکھا۔ لالا جی فروری 2012 میں 65 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ فرسٹ آف آل جو ہماری فرسٹ ریکویسٹ تھی، پریئر جو ہم نے کی تھی وہ قبول ہوئی ہے انشاءاللہ۔ آگے بھی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارے ہر پل ہمیں اپنی نظر میں رکھیں گے۔ ہم دونوں نے منت مانگی تھی، ہم دونوں کی شادی ہو جائے۔ اللہ ان بڑی کرم نوازی سی، وہ جڑی گل منہ کرنے سن وہ اس گلا ہو جانی سی۔ لالا جی کا عرس
हर साल फरवरी में होता है। एक शख्स वो पूरी ज़िंदगी वहाँ उसको तहारत के ख्याल है, कुछ भी नहीं हमने देखा, कल वो मर गया तो वहीं को कमली वाली सरकार बना दिया, कभी कोई सरकार बना के उसके दरबार बना दिए। तो मैं समझता हूँ उस दरबार के बनाने के साथ उन दुनियादारों का ताल्लुक वास्ता है जो उसके टाइटल से पैसा कमाना चाहते हैं। वैसे तो बुजुर्गान दीन रूहानियत और दीन के इल्म से मुरीदों को फैज़ याब करते रहे, लेकिन आजकल के इस दौर में सजादा नशीन और गद्दी नशीन साहिबान को तो तसव्वुफ और रूहानियत से कोई दिलचस्पी नहीं, और बाज़ छोटी दरगाहों पर तो महज ऐसे अफराद जुड़े हुए हैं जो अपने घर और ख़ानदान से रिश्ता नाता तोड़ चुके हैं। इनके पास जब आया तो सरकार ने मुख्तलिफ करामतें मेरे साथ की, जिसकी वजह से मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इनके नाम कर दी। लेकिन जब तक हमें पता नहीं होगा उस वक्त तक हम हक और सच का साथ नहीं दे सकते। उस वक्त हमें पता नहीं चलेगा कि कौन हक के रास्ते पे है, कौन बातिल के रास्ते पे है, कौन सिर्फ दुनियावी माल और मता के लिए बैठा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इल्म और शऊर ज़रूर होना चाहिए। अपने मुरीदों पर सवारी करने वाले मलंग लाला जी के बाद हमारी तफ्तीश हमें एक और मलंग भाग की दरगाह तक ले आई। मलंग भाग अपने मुरीदों में नंगा बादशाह के नाम से मशहूर है। साया 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 मेरे सोहने साया 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 मेरे। इस्लामाबाद में नांगा बादशाह के नाम से पहचाने जाने वाले मलंग साईं भाग भी लाला जी की तरह लिबास पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। मलक फजल दाद अलमारूफ साईं भाग की दरगाह इस्लामाबाद के सोहान गांव में वाक़ है। साईं जी की दरगाह पर लोग सिर्फ दुआ के लिए हाजिर होते हैं और उनके बारे में ये मशहूर है कि उनके पास हर मजहब के लोग आते और दीन की इल्म से फैज़याब होकर चले जाते। उस वक्त जो है ना हिंदू और सिख मुसलमान ये सब लोग आए हैं, उन्होंने मिठाई फ्रूट ये चीज़ें लाई हैं। तो उन्होंने कहा कि सरकार की दुआ करें, आप दुआ फरमाई। उन्होंने कहा कि ये आपके बच्चों के लिए लाए हैं। तो बाबा जी ने फरमाया कि नहीं, ये हमारे बच्चे नहीं खाते, मर जाते हैं, ये आप अपने बच्चों को दें, ये ले जाएं। तो बाबा जी ने फरमाया कि हम अल्लाह से लेकर अपने बच्चों को देंगे। इस दरगाह पर चंदा या नजर न्याज पर पाबंदी के हवाले से दरगाह के सज्जादा नशीन साईं मलिक हफीजुर रहमान कहते हैं कि साईं जी के अकीदतमंद देकर नहीं जाते बल्कि कुछ न कुछ लेकर ही जाते हैं। जो कुछ भी होता है लंगर पानी लोगों को देते हैं और बाहर से हम किसी से भी नहीं देते। ये हमारा ख़ानदान जो है, हम आपस में जितने भी हैं ये खुद खर्चा करते हैं। साईं भाग का उर्स हर साल जून के पहले हफ्ते में मुनक्कद होता है और इस उर्स के तमाम तर इखराजात साईं भाग का खानदान बर्दाश्त करता है। 4 रोजा मेले में महफिल मिलाद, घोड़ों का डांस और शेर ख्वानी शामिल है। रात को शेर ख्वानी शानी होती है और हफ्ते को भी जो है ना घोड़ों का डांस और रात को कवाली निशानियाँ होती रहती हैं। इतवार को ये है कि डालियाँ आखिरी दिन होता है और डालियाँ होती हैं और रात को कवालियाँ जो ना। साईं जी के मुतालिक हमें कोई खास मालूमात नहीं मिल सकी, सिर्फ इतना ही इल्म हुआ जितना बयां किया गया है। ये अपने जिस्म से गोश्त भी काटते थे, ऊपर मिर्चें लगानी, नमक लगाना, मच जल रहा है उससे अंगार उठाने, उसके ऊपर रखने, फिर मुस्कुराना कि अब तुम क्यों सी कर रहे हो। ये एक अलमिया है कि इन फकीरों के वर्सा भी उनके मुतालिक ज्यादा मालूमात का जखीरा नहीं रखते कि आने वाली नस्लें उनसे मुस्तफीद हो सकें। हम तक तो यही बात पूछिए कि जी बस इस्लाम फैलाया तो इन्होंने बहुत है जो है ना, इस्लामी तालीम भी देते रहे और बहुत कुछ जो है ना इस्लाम के लिए जाने करते रहे। बाकायदा तौर पे तस्दीक कर लें कि आया जो साहिबे मज़ार हैं वो शरीयत के पाबंद थे, तरीक़त के पाबंद थे, अल्लाह के जो परहेज़गार और मुत्तकी लोग हैं जिनका कुरान करीम में भी ज़िक्र है, वरना उन मज़ारात और उन परहेज़गार लोगों के पास जाना चाहिए। क्या तसव्वुफ और मलंगी सिर्फ मर्दों ही से मंसूब की जा सकती है या कहीं ख़वातीन के भी मज़ार पाए जाते हैं? क्या ऐसे मज़ारों की गद्दी नशीनी का दावा भी ख़वातीन कर सकती हैं या नहीं? कई हाजी बन बन आए जी, गल नीले जामे पाए जी,
हाजी बन फकीरी और मलंगी के इस सिलसिले में खवातीन की तादाद ना होने के बराबर है, मगर तफ्तीश की टीम ने इस्लामाबाद के कुरी गांव में एक ऐसी दरगाह भी ढूंढ निकाली जहां पर एक मलंग खातून मदफून है। ये है बीबी पाक दामन माई आजाद की दरगाह। माई जी बचपन से ही दरवेश थीं। माई जी के बारे में मशहूर है कि जब उन्हें शादी का जोड़ा पहनाया गया तो कपड़ों को आग लग गई और उस वक्त से ही माई जी ने दुनियादारी का सिलसिला छोड़ दिया। ये यहीं भी रहती थी या ये साथ घर है, इनसे बड़ा इन्होंने लगाव रखा हुआ था। बुजुर्ग माई थी या उसके घर चली जाती थी, या ये सखी महबूब बादशाह हैं, ठीक है, वहाँ तकरीबन शाम को या रात को जाती थी तो एक पाँव पे खड़े होकर कुरान शरीफ की तिलावत करती थी। राबिया बसरी से बड़ी और कोई फ़कीर और कोई कलंदर और कोई मुर्शद जो है औरतों में शायद ना गुजरा हो करीब के वक्तों में, लेकिन राबिया को भी देखिए कि एक बुज़ुर्ग के साथ बैठी हुई थी और बुज़ुर्ग उनके साथ दुनिया की बातें कर रहे थे, तो उन्होंने अपने बुज़ुर्ग को कहा कि आप जाइए, मेरा आपके साथ बैठना नहीं बनता। कहा क्यों? कहा क्योंकि हर इंसान वही जिक्र करता है जिससे वो मोहब्बत करता है। आपको दुनिया से मोहब्बत है, आप दुनिया का तस्करा कर रहे हैं, मुझे खुदा से मोहब्बत है, मैं सिर्फ खुदा का जिक्र करना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहले इस्लाम में तो मलंग और फ़कीर की कोई ऐसी इस्तिलाह नहीं है। ये हमारी अपनी ईजाद करदा चीज़ें हैं, लेकिन उसको ये कह सकते हैं कि मलंग फ़कीर वो है जो दुनिया से बागी है, दुनिया से सरकश है, दुनिया की उसे कोई परवाह नहीं है। फ़कीर इल्लल्लाह है, वो अल्लाह के दरबार का फ़कीर है, तो फिर तो हम मान लें। लेकिन अगर दुनिया का फ़कीर है तो उसको फ़कीर तो नहीं कहेंगे ना, वो तो लालची आदमी है। माई जी की गद्दी नशीन उनकी भांजी हैं, लेकिन वो कैमरे से दूर रहने को तरजीह देती हैं। गद्दी नशीन सैयदा फकराज बीबी अलमारूफ माई बिल्लो जी एक छड़ी से अकीदतमंदों की मोहब्बत का जवाब देती हैं। माई बिल्लो जी बचपन से ही माई आज़ाद की खिदमत करती रही। माई जी की इस दरगाह पर मर्द व ख़वातीन, बच्चे और बीमार सभी हाजिरी के लिए आते हैं। मेरे सामने ज़हनी मसला था, मुझे पता नहीं चल रहा था क्या छोड़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। छलांगे लगाता था, मारता था लोगों को, पता नहीं चलता था। ये कपड़े उतरे हुए हैं, नहीं हैं, तो फिर इधर से आता जाता रहा, फिर ठीक हो गया। अब ये बच्चों के लिए आई हूँ, छोटे बच्चों के लिए, ताकि ये डर जाते हैं, अक्सर रोना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए माई जी से दम करवाना है ताकि ये बच्चे ठीक हो जाएं। इनके अकीदतमंद तकरीबन पूरे मुल्क से, फॉरेन कंट्री से भी हैं, पूरे मुल्क से भी हैं, ठीक है। और इनकी ये है कि यहाँ पे जिस तरह कोई मतलब कोई बीमारी होती है, जिस तरह की भी कोई भी है, तो किसी भी किस्म की भी कोई भी हो, तो अल्लाह के पाक के करम से इंशाल्लाह शिफा होती है। दीगर दरगाहों की तरह इस दरगाह पर भी हर साल जून के महीने में उर्स होता है। इस दौरान अकीदतमंद ढोल की थाप पर धमाल डालते हुए दरगाह पर हाजिरी देते और माई जी से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। चिरागी से शुरू होता है, फिर चादरें हैं, डालियाँ हैं, ठीक है, फिर जो कवालियाँ भी होती हैं। ये हमारे इलाके खिता पठवार का एक लोक सिस्टम है, शेर ख्वानी, वो इधर होती है, ठीक है, कवालियाँ होती हैं। मेरे नज़दीक अगर कोई ख़ातून परहेज़गार है और वो इबादत गुज़ार है, लेकिन वो गद्दी नशीन किसी मर्द की रहनुमाई करने के लिए नहीं बन सकती, क्योंकि इस्लाम में महरम और नामहरम का जो लिहाज है वो बहुत ज़रूरी है। तू बचा बचा के ना रखी से, तेरा आईना है वो आईना, तेरा आईना वो आईना। वैसे तो हर दरगाह पर अकीदतमंद बाकायदगी से हाजिरी देते हैं, लेकिन इस्लामाबाद के रियाड़ा गांव में वाक़े सैयद अला बख्श बुखारी की दरगाह पर कम ही लोग आते हैं। दरगाह के खादमीन सिर्फ दुआ का इनकाद करवाते हैं। डालियाँ शालियाँ हम पसंद ही नहीं करते हैं, लोग बोलते हैं, हम लाते ही नहीं हैं डालियाँ। ये सब जो ये इधर नचा कूदा ये वो हमको पसंद नहीं है। इधर शेरबाजी होती है, इधर कबाली होती है, हम इधर रहते हैं, हम दुआ कराते हैं। यकीनन जब इंसान खुदावंद मुताल के हुजूर झुक जाता है और उस मंजिल तक पहुंच जाता है, तो फिर यकीनन ये चीज़ें मुमकिन हैं या मुमकिन नहीं है कि खुदावंद मुताल ज़बान में तासीर पैदा करता है, हाथ में तासीर पैदा करता है, इंसान की रियाजत, इबादत, तकवा, अकीदा, ये सारी चीज़ें शामिल हों, तो यकीनन ये चीज़ें हैं। लेकिन उसके लिए ये देखना ज़रूरी है कि वो क्या कवायद शरिया का पाबंद है या नहीं। खानदान के अफराद कहते हैं कि इस बुजुर्ग के अकीदतमंदों का ताल्लुक कश्मीर से है, जो हर साल 22 जून को उर्स के दिन आते हैं।
बाबा जी जो है ना इस इलाके के रहने वाले हैं और पीछे से ओट शरीफ तो वे आए इधर। हूँ तो मरीज साढ़े तो बहुत ज़्यादा से मीरपुर में थे, एकारू के इलाके में बहुत ज़्यादा थे। कोई ऐसा इदारा होना चाहिए, तहकीकी इदारा, जो तमाम मलंग और फुकरा के और मज़ारात के तस्दीक करे कि आया ये अथेंटिक हैं या ये सिर्फ़ अपनी दुनियावी माल व मता हासिल करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। उसके लिए गवर्नमेंट को कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए और उनका बाकायदा उनका शजरा और नसब और उनका सिलसिला तस्दीक करके हमें उनके मज़ारात पे जाना चाहिए। कुरी शहर इस्लामाबाद में वाक़ ये मज़ार सैयद पीर गुलाम बादशाह बुखारी का है। ये बुजुर्ग तक़सीम हिंद से कबल इस मुकाम पर मदफून हैं। अल्लाह की मेहरबानी से इनकी बहुत फजीलत है, अल्लाह वाले की बहुत फजीलत है, बहुत करामत है। काफ़ी मुद्दत से यहाँ रिहाश पजीर थे और फ़कीर आदमी थे, अपने जलाल में रहते थे, अल्लाह का जिक्र करते थे और इसी बना पर आज हम लोग इनकी दुआ गो में रहते हैं। 11वीं शरीफ पर हर माह एक दुआए तकरीब होती है और लंगर का भी इंतजाम होता है। हाँ, 1-2 डालियाँ आती हैं, अभी यहाँ आती हैं 1-2 डालियाँ आती हैं, काफ़ी आदमी तादाद से आते हैं। यहाँ लंगर होता है और नातख्वानी की जाती है, यहाँ बहुत बड़े नातख्वान आते हैं। इस दरगाह के अहाते में साईं काला का मकबरा भी वाक़ है, जो साईं गुलाम बुखारी के मुरीद खास थे। साईं काला के बारे में मशहूर है कि वो सांप पाला करते थे। इस दरगाह पर हर साल 3 रोजा उर्स का इनकाद होता है, जिसमें इलाका मकीनों के अलावा रावलपिंडी इस्लामाबाद से भी अकीदतमंद शरीक होते हैं। अल्लाह का जिक्र और ज़िकार किया जाता है, नात खानी होती है और बड़ा अच्छा लंगर तकसीम किया जाता है। रावलपिंडी से और आगे पीछे से जहाँ मतलब दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पर। बास फ़कीर और मलंग ऐसे भी हैं जिनके असल मकबरे का इल्म किसी को नहीं, लेकिन उनके मुरीदों ने उनको अपने तस्करों में ज़िंदा रखने के लिए ज़िंदा पीर के नाम से मंसूब किया हुआ है। और उनकी ऐसी बहुत सी बैठकें हैं जिनको दरगाह का दर्जा देने के साथ साथ वहाँ उर्स का एहतमाम भी किया जाता है। इस्लामाबाद का नवाही इलाका खन्ना पुल में वाक़े हजरत अब्दुल्ला शाह बियाबानी की ये दरगाह 800-900 साल पुरानी बताई जाती है। इस दरगाह का इंतजाम महकमा औकाफ के पास है, जबकि इस दरगाह से वाबस्ता खिदमतगारों की फहरिस्त भी काफी तवील है। यहाँ पर यही है कि मेरी ड्यूटी लगी, मैं 5-7 साल रहा, ये आ गया, जिसको मालूम रहता है उसको बिठाता है। ऐसे लोग जो मज़ारात पे जाते हैं, वहाँ दुआएं करते हैं, कुरान ख़वानी और दरूद सलाम पढ़ते हैं, बेशक ये फ़ेल उनके लिए बायस बरकत है, क्योंकि वो ज़िक्र इलाही और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। यहाँ के खिदमतगार मोहम्मद हफीज से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक बाबा जी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 13वें खलीफा के तौर पर जाने जाते हैं। ये सरकार हजरत शाह अब्दुल्ला बियाबानी सरकार हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के 13वें खलीफा मुबारक हैं और ये अजमेर शरीफ से प्रवास करके इधर आए हैं। अभी आपने आगे सवाल किया कि आप इधर होते हैं, बाबा का एक फ़ोटो दे दो। मैंने कह दिया आपको कि 9-10 सदी के उससे फोटोग्राफर था। बाबा जी के बारे में एक दिलचस्प बात ये है कि उन्हें परवाजी वली का लक़ब मिला। अगर कोई उस इबादत और रियाजत को बुनियाद बनाता है, खुदा और अहकाम इलाहिया की इत्तबा करते हुए आगे बढ़ता है, तो उसमें बहुत सी परवाज़ है। इंसान की सोचें कहाँ तक खुलती हैं और इसीलिए कहा गया इस कायनात के बारे में गौर व फिक्र करो। एक एक चीज़ जब सोचोगे, गौर व फिक्र करोगे, तो खुदावंद मुताल की कुदरत कामला उतना ही मुनकशिफ होगी, उतना ही बड़ी आएगी सामने। एक रवायत के मुताबिक हजरत अब्दुल्ला शाह बियाबानी की 72 बैठकें हैं, जहाँ पर अलामती मकबरे भी तामीर किए गए हैं। खन्ना पुल के इलाके में वाक़े इस गार के बारे में ये बात मशहूर है कि बाबा जी ने खुद इसकी खुदाई की और एक तवील अरसा इस गार में इबादत और बंदगी करते रहे। इनके 72 मज़ारात है, ईरान, इराक, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो मकाम है वो ये खन्ना है। ये सरकार के अपने हाथों मुबारक से ये बना है। ये जो गुंबद बना है बाद ये 50 साल पुराना है, ये हजरत बाबा फजल कल्याम शरीफ वालों ने ये बनवाया था। अलामती मकबरे कहीं भी तामीर करना जो है ये एक इंतहाई नाक़िस ख्याल की बात है। कुछ भी चीज़ अलामती इस तरह से नहीं होनी चाहिए। सिंबल और साइन में हमें फ़र्क करना चाहिए। ये जो सिम्बॉलोजी है ये रिलीजन के अंदर बड़ी ज़रूरी होती है, लेकिन ये बहुत सी गलत फहमियाँ पैदा कर सकती है। इसलिए सिम्बल्स हमें सिर्फ वही रखने चाहिए जो कि हकीकत में हमें तारीख में मिलते चले आ रहे हैं। ख्वाजा सराओं का शुमार मुआशरे के पिसे हुए तबके में होता है। वो भी मज़ारात पर हाजिरी देकर अपनी ख्वाहिशात की तशफ़ी करते हैं। ये हैं ख्वाजा सरा फरजाना, जो पेशावर से बाबा जी की दरगाह पर हाजिरी देने आए हैं। ये अल्लाह के जो है ना नज़दीक है, उनके प्यारे हैं, अल्लाह पूरा करते हैं। जो हम मांगते हैं अल्लाह से मांगते हैं,
लेकिन इनको भी अल्लाह ने रुतबा दिए। हम इधर आते हैं, हमारे जो मुरादें जो पूरी होती हैं, हम उनको बहुत देर के मानने वाले हैं। सरकार के खाली यही बेअवानी सरकार का जगह नहीं है, बैठक और भी जगह बनी हुई है, एक दो जगह और हैं, जैसे रावल डैम रोड के ऊपर जंगल में बड़ा प्यारा सा एक तख्त बना हुआ है जहाँ इन्होंने बैठक की है। इस दरगाह पर हर साल मुहर्रम के पहले अशरे में उर्स का एहतमाम होता है, जो कि इंतहाई सादगी से मनाया जाता है। पहली मुहर्रम से शुरू होता है, 10 दिन तक रहता है। इसमें उस वक्त ये सादगी के साथ जो माएँ बहनें आती हैं, जो बुजुर्ग आते हैं, वो सलामी के लिए आते हैं, लंगर तकसीम करते हैं। जो पहले कहा है, भाई हम घर लेके जाएं या हम उधर बांटे, देगों पर देगे आती हैं, 2 तुम ला रहे हो, एक वो ला रहा है, एक ला रहा है, सारा दिन बस यही काम चलता रहता है। काफ़ी कबूल हुई हैं। यह कि मैंने अपनी पढ़ाई के लिए भी दुआ की थी, जो है कि मेरा रिजल्ट अच्छा है, वो यह है कि वो मेरा ठीक आया है। हमारे मुआशरे में पीरी मुरीदी का सिलसिला बहुत कदीम है, लेकिन बाज़ औक़ात अक़ीदतमंद इन बुजुर्गों से ऐसी बातें भी मंसूब करने की कोशिश करते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये है मारदल्ला हिल्स का पहाड़ी सिलसिला और इसकी चोटी पर वाक़े है बाबा वली कंदहारी की बैठक। बाबा जी के अक़ीदतमंद हर साल इस बैठक पर भी उर्स का एहतमाम करते हैं। किताब से जो हवाला मिला है, मेरे मुनीर किताब है, हज़रत पीर मेर अली शाह सरकार की किताब है। उसमें उन्होंने लिखा है कि 1.25 लाख तकरीबन इनकी मकामात है ये लगाए। ये जो बैठने वाले चाहने वाले होते हैं ना, उनकी अपने मोहब्बत और प्यार का अंश होता है, तो वो ऐसे करते हैं कि यहाँ मेरे बाबा बैठे थे, वो प्यार की वजह से वो जो बैठकें होती हैं उनका मकसद यही होता है ना। दरगाहों का ताल्लुक बैठकों से हरगिज़ नहीं है। दरगाहें जो हैं ये गलियों और सड़कों की तरफ नहीं खुलती, ये तो गलियों और सड़कों के लोगों को अंदर लेकर आने के लिए बनाई जाती हैं, और फिर बैठकें जो हैं ये सोशल सेटअप के लिए होती हैं, सोशल टॉक के लिए होती हैं, जबकि दरगाहें जो हैं और खानकाहें जो हैं ये इल्मी हसूल के लिए होती हैं, और यहाँ पे इल्म का हसूल इब्तदा और इंतहा कुरान और हदीस है। वैसे तो बाबा वली कंदहारी का मज़ार हसन अब्दाल में है। बाबा जी को जिंदा पीर के अलकाबात से भी जाना जाता है। ये जो इनका हवाला हमें मिला है जी हज़रत पीर मेर अली शाह सरकार की किताब से, ये हयात है और ये गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पोते हैं। मेरे ख्याल में पीर, जिंदा पीर तो उस पीर को कहा जाता है तशबीहन जो कि इस दुनिया से तो रुखसत हो चुका हो, लेकिन उसके मुरीद जो हैं वो ये ना कहते हों कि वो मर गया, वो कहते हों कि वो पर्दा फरमा गए हैं। इसको हम जिंदा पीर कहते हैं। दरबार में तो वैसे जाते रहते हैं, लेकिन इस दरबार में पहली दफ़ा है यहाँ पे, तो रास्ता भी काफ़ी थका देने वाला रास्ता है, काफ़ी मुश्किल रास्ता है। हमारे मुआशरे में बेशतर छोटी दरगाहों से वाबस्ता अकीदतमंदों को औलिया अल्लाह, फ़कीर और मलंगों के बारे में कोई इल्म नहीं होता। इसकी एक वजह महकमा औकाफ और दरगाहों से वाबस्ता सजादा नशीनों की कोताही हो सकती है, जो इस हवाले से सही मालूमात फराहम करने में नाकाम हैं। जो पीर आज दुनिया में हयात है और अपनी खानकाहों पे इल्म दे रहे हैं, मेरे ख्याल में उनको एक उस्ताद का दर्जा जो है वो यकीनन अल्लाह की तरफ से मिला है और मिलना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में इन बैठकों का और इन दरगाहों का और कोई मकाम नहीं। ख़ास तौर पे तारीख़ में भी अगर आप देखें तो दरगाहें जो हैं वो इल्मी हसूल की काविश और लोगों को आसानी देने के लिए थी, लेकिन आज अगर आप ये बैठ के देखते हैं तो ये तावीज़ों के लिए और दम दरूद के लिए इस्तेमाल हो रही है। मैं इनको बुरा नहीं कह सकता, लेकिन मैं इनको रिकमेंड भी नहीं कर सकता। एक वक्त था जब खानकाहों में इल्म व अमल की शमें जलती थीं। ऐसी खानकाहें कभी लाखों तालिब इल्मों का मकतब रही हैं, लेकिन आज खानकाहों, मज़ारों और दरगाहों पे इल्म मांगने वालों के बजाय सिर्फ दुआ मांगने वाले नजर आते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसी दरगाहों पे सिर्फ नज़र व नियाज का एहतमाम करने के बजाय औलिया किराम के किरदार और उनकी तालीमात के हवाले से भी तफ्तीश जारी रखी जाए।